Dr. Kalpana Nagpal, Senior Consultant in ENT and Head and Neck Surgery at Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi. This is part of our effort in creating public awareness for a lot of ENT ailments. So we have already done 3 lectures, and this is the 4th one now. This is a topic which would be of great interest for you. It's a very common issue. A lot of people come to us with blocked nose, naak band, pura saal naak band ya beech mein band. So this intermittent nasal blockage or persistent nasal blockage is a very common complaint, and patients come to us on a day-to-day basis. Lots of patients come to the OPD with this complaint. Now, why is blocked nose happening? Now, there could be various reasons. There could be a bone twisted inside or a cartilage twisted inside, which means the central partition of the nose is deflected to one side. Haddi teda hai. So this is called deviated nasal septum. This could be one of the reasons. Then there could be turbinate hypertrophy. मतलब कोई और कुरकुरी हड्डी होता है नाक में और वो सूज जाता है because of other reasons like allergies etc. उसको turbinate hypertrophy कहते हैं. वो भी एक वजह हो सकता है. So blocked nose can be either due to deviated nasal septum or turbinate hypertrophy. Now third cause could be polyps in the nose. नाक के अंदर हरे रंग जैसे हरे अंगूर होते हैं ना, उस तरह की गुच्छे की तरह अंदर भर जाता है और नाक के अंदर मल्टीपल ये पॉलिप्स के वजह से ये नाक बंद हो सकता है. ऐसे लोग मुंह से सांस लेते हैं और खुशबू या बदबू का पता नहीं चलता या कम हो जाता है. Now, this multiple polyps or it can be single polyps. So it depends whether it is antrochoidal polyp or allergic nasal polyps, which are multiple. Now, इसके अलावा बच्चों में adenoids can be a reason. So a lot of parents actually miss this or they present very late with the kid. You know, they do notice mouth breathing in kids. And despite that, they think it is quite normal because they're not aware that there is a condition called enlarged adenoids, which is blocking the backside of the nose. तो नाक के पीछे के हिस्से में adenoids बढ़ जाने से नाक का रास्ता बंद हो जाता है और सांस लेना दिक्कत होता है. तो इसमें क्या है, बच्चा मुंह से सांस लेता है. सो मुंह की सांस लेने की वजह से अंदर गला सूख जाता है और रात भर या तो खराटे लेता है या मुंह बस खुला रहता है या फिर सीधा नहीं लेट पाता है, पेट के बल लेट पाता है. So children with enlarged adenoids can have some recurrent otalgias, मतलब कान में दर्द हो सकता है बार बार, या फिर नाक बंद का ही ज्यादातर होने की वजह से एक एडिनॉइड फेसिस बन जाता है. मतलब वो देखने से ही ENT स्पेशलिस्ट को पता चल जाता है कि ये इस बच्चे में एडिनॉइड्स है. एडिनॉइड फेसिस का मतलब बेसिकली ये माउथ ब्रीथिंग कुदरती होता है, क्योंकि नाक बंद है तो ये नेचर का कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है. और बच्चों में भी हो सकता है, थोड़े बड़े होने पर भी एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स का मतलब बना रहता है. जैसे 9 साल पर ये एडिनॉइड्स चले जाते हैं ज्यादातर, बट कुछ बच्चों में ये रह जाता है और नाक बंद का कारण बन जाता है. There are many other reasons also. You know, they could be fungal sinusitis. They could be many other reasons because of fractured nasal bone. There can be septal dislocation. So ये सब कारण बहुत common होता है. So नाक बंद की वजह से लोग क्या करते हैं, ऑट्रिविन ड्रॉप्स डालते हैं या नेजिवियन ड्रॉप्स डालते हैं. ये क्या होता है, ये ड्रॉप्स होते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट्स, और इसको कई बार हम सुनते हैं कि मरीज या तो पूरा साल ही इस्तेमाल कर रहे हैं या दिन रात उसी को जेब में लेकर के घूम रहे हैं. Actually, nasal decongestants have a lot of side effects. Now, these drops can cause a condition called rhinitis medicamentosa. इसमें जो salt होता है वो xylometazoline होता है या oxymetazoline होता है, और ये खतरनाक है. इसको कभी कभी 3 महीने में 1 आध दिन या 2 दिन यूज करने से कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने से अंदर का चमड़ा लाइनिंग खराब होता है. तो ये राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा अच्छी बीमारी नहीं है, क्योंकि आप यू आर गेटिंग हुक टू द ड्रॉप्स. जब भी आप डालते हो बहुत मजा आता है, राहत मिलता है, लेकिन अंदर का प्रॉब्लम बढ़ता है. तो मैं सबको यही कहती हूँ, ये ड्रॉप्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
ये ड्रॉप्स को फेंक दो। आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर के आप अपना नाक चेक करवाइए, डायग्नोसिस क्या है, किस वजह से बंद है। और नाक बंद रहना वैसे भी दूसरे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकता है, जैसे मैंने कहा हड्डी बढ़ी हुई है या डिवेटेड नेजल सेप्टम, वो साइनोसाइटिस का कारण बन सकता है। तो कई लोगों को साइनस हेडेक्स वगैरह होता है और क्रॉनिक साइनस के प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। और कभी कभी नाक में खून आता है, इन नक्सीर का एक कारण ये भी डिवेटेड नेजल सेप्टम भी होता है। और रेयरली क्या होता है, नाक बंद कोई और वजह से होता है, जैसे एल्डरली में नाक बंद होता है कोई ट्यूमर्स की वजह से। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने कभी सुना होगा कि अंदर मस्सा बड़ा हुआ है। मस्सा बड़ा हुआ मतलब क्या है, एल्डरली में कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ट्यूमर्स ऑफ द नोज एंड पैरानेजल साइनसेस, उस वजह से भी नाक में आपका नाक बंद हो सकता है। और कोई दर्द या कोई और सिम्टम होना जरूरी नहीं है, इसीलिए चेक करा लेना चाहिए। और भी कई कंडीशंस है, जैसे हमारे पास राइनोस्क्लीरोमा के पेशेंट्स आते हैं, इन्वर्टेड पैपिलोमा के पेशेंट्स आते हैं। ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि कई कारण होते हैं जो एक ईएनटी डॉक्टर ही कह सकता है आपको कि क्या वजह है। तो इसीलिए आपको जरूर जांच लेना चाहिए और ये सेल्फ मेडिकेशंस को दूर रखिए और प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करिए। थैंक यू।